So the subject name is simulation, modeling and analysis. Very important subject from research point of view. You have to make models. In any research, you have to model the problem. Then you have to simulate that problem by using that model. So very important subject from research point of view. The subject code is MMEC 0002. This is the syllabus that already I have sent on your WhatsApp. A PDF file already sent to you for each and every subject, including my subject. So the total syllabus is divided into 3 modules. First module, second module and third module. So your exam will be done 2 times in the semester. So in the midterm exam, first exam, the first unit and half of the second unit. There are 3 units. So first unit and half of the second unit. Just I convert it into pen. So in exam, the total syllabus is divided into 2 parts. One is midterm exam and one is end term or final exam. So generally the distribution is for midterm exam is 30 marks and for the final exam it is 50 marks. But due to Corona, these things are changeable. If we are going for the online exam, then syllabus, pattern, number of the questions, total number of the midterm exams, all are changeable, all are flexible. This is the general pattern that I am telling you about the university before Corona period. So total exam is divided into 2 exams. For the first exam, the syllabus will be first unit complete and half of the second unit. So I am drawing a horizontal line from here. So this is the horizontal line dividing the total syllabus into 2 parts. So this is part 1 and this is part 2. So part 1 means the unit 1 complete and half of the second unit, and part 2 means half of the second unit and third unit complete. Okay. So we will cover up unit 1 completely and half of the unit for first exam point of view. Till we have no date for this exam, it will be come to you through your email ID. So unit 1 comprises a review of the basic probability and statistics. The term probability is very clear to all of you. So what is probability? थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए सेशन. प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दीजिए आप. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? चांसेस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट, है ना, आप लोगों ने पहले पढ़ा है ना सब. चांसेस ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है. तो इन द फर्स्ट यूनिट, द इंट्रोडक्शन चैप्टर, ए रिव्यू ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी, है ना. तो प्रोबेबिलिटी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, है ना. स्टैटिस्टिक्स, ना, व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, है ना. We will discuss all these things, random variable and their properties, estimation of the mean, variance and correlation. ये आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सब हमने पढ़ा हुआ है ना. तो इसी को हम थोड़ा सा आज रिवाइज करेंगे. Then we will proceed for the physical modeling, then system simulation, and this covers our first part, for which we have to appear in the exam. You have to appear in the exam. So I am just starting the introduction today. So एक प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं पहले.
और आप लोग मुझे जरा उसके आंसर्स बताइएगा, सो दैट मुझे पता लग जाए कि आपको कितना आता है ना। तो चलिए जरा ये बताइए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? ये वर्ड तो सुना होगा ना आपने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जरा सा डिफाइन कर दीजिए कोई भी, या समझा दीजिए आप। 8 लोग हैं मेरे साथ, कितने लोग हैं? टेबुलर फॉर्म में होगा सर, मतलब रेंज वाइज क्लास ए से डिवीजन होगी, मतलब फेवरेबल आउटकम किसके बीच में लाई करेगा उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को। सबसे पहले तो आपके पास इवेंट होनी चाहिए ना। इवेंट होंगे इवेंट होगी तभी और तो प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। विदाउट इवेंट देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, है ना। यस तो सर। आपके पास पहले क्या होनी चाहिए? इवेंट होनी चाहिए। सम इवेंट शुड बी देयर। फॉर एग्जांपल, इवेंट कुछ भी हो सकती है ना। सपोज इंडिया इज द विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया इन ए क्रिकेट मैच, है ना, रैंडम क्रिकेट मैच, दिस इज एन इवेंट, है ना। मान लीजिए मैंने किसी डाइस को रोल किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर? दिस इज एन इवेंट, है ना। सपोज आई एम रोलिंग 2 डाइसेस, लेट दिस इज डाइस नंबर 1 and this is dice number 2. I am rolling both the dices randomly, है ना, both dices are rolled. अब यहाँ पे एक इवेंट ले लेते हैं, let event is sum of the numbers appearing on dice is 7. Sum of the numbers appearing on the dice is 7. तो बताइए इसका क्या वो होगा। इसकी पहले तो प्रोबेबिलिटी बता दो इस इवेंट की। लेट द इवेंट इज, दिस इवेंट इज ए, है ना। ए इज द इवेंट, सम ऑफ द नंबर्स appearing on the top of the dice is 1 by 6. Very good. So PA is given by, हाँ। और बताइए कैसे आपने कैलकुलेट किया? आपने इसके फेवरेबल आउटकम्स बनाए होंगे पहले, है ना। Suppose this is the first dice, this is the second dice. Suppose this dice number is 1, this dice number is 6, so 1 plus 6 is equal to 7. So this is our event, है ना। Similarly 2 plus 5, 3 plus 4 is also 7, 4 plus 3, 5 plus 2, 6 plus 1. So how many favorable outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 outcomes are favorable. So 6 is the numerator. And what is the denominator? 36. 2 dices are there. This dice can be rolled 6 in the 6 ways. This dice can also be rolled in the 6 ways. So the total number of rolling of the dices are 36. So favorable outcomes divided by total outcomes is 6 by 36. So answer is 1 by 6. This is the event. Okay. Now I am using a second event. What is the probability that sum is appearing a even number? चलिए 2 मिनट का जीरो सेशन है, आप लोगों को कैलकुलेट करना है और बताना है आंसर। क्वेश्चन क्लियर है? The event is 2 dices are rolled. What is the probability that you are getting a even number? The sum of the both the dices on the top is a even number. 3/12। जिसका भी आंसर आ जाए बताइए कितना, बताइए बताइए। 3/12। 3/12 मतलब 1/4 एक तरह से। Yes sir, 1/4. ओके ओके। व्हाट इज योर नेम? सचिन, है ना। योर नेम इज सचिन। यस सर। सचिन का आंसर आ गया 1/4। और बताइए कोई, जिसका भी आंसर आता जाए मुझे जरा बताते जाएं। सर 1/4 आएगा आंसर। 1/4। आपका नाम? प्रत्युष। 1/4 सर।
Pratyush is also saying 1/4. और कोई? 1/4. What is the answer? 1/4. अच्छा, सभी का आंसर 1/4 है. मोहिनी देवी also 1/4. 1/4. Akash is also saying 1/4. Moini also saying 1/4. चलिए, सबका आंसर 1/4 है. जरा कैलकुलेट करते हैं, है ना, ये आंसर सही है या गलत है. तो चलिए जरा सा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो कैलकुलेट करने के लिए मैं जरा सा पहले स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ. ठीक है, देखिएगा ध्यान से. इवेंट क्या है कि हमको इवन नंबर चाहिए. लेट दिस इज द फर्स्ट डाइस, दिस इज द सेकंड डाइस एंड वी वांट इवन नंबर. ठीक है, तो इवन नंबर कैन बी 2, इवन नंबर कैन बी 4, इवन नंबर कैन बी 6. हो सकता है कि नहीं, बताइए. इवन नंबर कैन बी 8, इट कैन बी 10, इट कैन बी 12. 12 से ज्यादा 14 भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है. क्योंकि इस डाइस पर मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है. इस डाइस पर मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? 6 आ सकता है. तो 6 + 6 12 is the last number. It is the last even number or it is the largest even number that we can get. Similarly, 2 is the smallest even number. Smallest number on the first dice is 1. On second dice is also 1. So 1 + 1 is 2. So it is the smallest even number. It is the largest even number. Now, what are the chances of getting 2? 1 and 1. So only one chance is there. और कोई चांस ही नहीं. What are the chances of getting 4? On first dice 1, second dice 3. So 1 + 3 = 4. First dice 2, second dice 2, it is also 4. 3 + 1, it is also 4. So how many chances? 3 chances. So 1 chance of getting 2, 3 chances of getting 4. And what are the chances of getting 6? 5. 5 chances. Very good. 1 5, 2 4, 1 5, 2 3, 3 2, 4 1, 1 5 6, 2 4 6, 3 3 6, है ना, 4 2 6, 5 and 1 6. So 1 2 3 4 5. 5 chances. Very good. Your answer is 1/2, not 1/4. Okay. What is your name? Sir, Pratyush. प्रत्युष. आपने पहले दिया था 1/4 आंसर और अब आप दे रहे हैं 1/2, है ना. लेट्स चेक इट अगेन, है ना. इसको भी चेक करते हैं कि 1/2 हुआ या 1/4. आप पूछ रहे हो दोनों डाइस पे जो आउटकम है वो इवन आने चाहिए. Yes. Event is getting the number total of the 2 dices will be even. This is the event. So 1 chance, 3 chance, 5 chance. Now chances of getting 8, 6 2, 5 3, 4 4. 4 और 4 8 होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए. उसके बाद 3 5, 2 6. कितने चांस हुए? अगेन 5 चांसेस. देख लीजिए. पहले डाइस पे 6, दूसरे पे 2. 6 और 2 8 हो गया. 5 और 3 8, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8. सो अगेन यू आर गेटिंग 5 चांसेस, है ना. 1 और 7 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 7 तो नंबर होती ही नहीं डाइस पर. डाइस पर लास्ट नंबर 6 होती है. So only 5 chance again. What are the chances of getting 10? बताइए. 6 and 4, 5 and 5, 4 and 6. How many? 3. 3 chances. 3 chances. Only 3 chances. What are the chances of getting 12? 6 and 6. Only 1 chance. So favorable chance are 1 + 3 + 5. 1 + 3 + 5. 1/3 आंसर आएगा. हैं? आराम से करिए, थोड़ा इतनी जल्दबाजी मत करिए ना. 1/2. 1/2 भी गलत है. 1/4 भी गलत है. 1/3 भी गलत है. अभी चेक करिए आंसर क्या आएगा. 1 + 3 + 5 + 5 + 3 + 1. ये देखो मैंने सबको जोड़ दिया. 1 3 5 5 3 1. 18/36. 18/36. So it is कितना टोटल आ रहा है इसका? 18. 18. 5 5 10 6 16 17 18/36.
So it is 1 by 2 है ना. So 1 by 2 is right. 1 by 2 is not wrong. 1 by 2 is correct. So the answer is 1 by 2. मेरे ख्याल से कुछ रिवीजन हुआ आपका पुराना, आपको सब आता है, ये कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, है ना. सबसे पहले आप इवेंट को पहचानिए. Concentrate on the event. Once you concentrate on the event, then you find the favorable chances. You total all the favorable chances, then find the probability. Don't hesitate, don't be quick in giving the answers. First analyze the event, calculate the favorable outcomes, then give the answer. So I think it is clear. Okay. चलिए अब थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं. तो मैं बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की. अभी तो हमने प्रोबेबिलिटी देखी है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी देखा है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अभी हमारी इवेंट क्या थी? व्हाट वाज द इवेंट? अभी हमारी इवेंट क्या थी? हमारी इवेंट थी कि सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइसेस इज ए इवन नंबर. Is a even number. This was the event. So what is the probability distribution for this event? What is the probability distribution of this event? So we can make the probability distribution in this way. In the probability distribution, you will take a variable sum. This variable has options. It can be 2, it can be 4, it can be 6, it can be 8, it can be 10, it can be 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 options for this variable. Now what is the probability of this variable? Let this variable is capital X. Then what is the probability of getting this variable? So getting the sum 2, we have calculated. What is the probability of getting 2? 1 by 36. What is the probability of getting 4? 3 by 36. 3 by 36. है ना? 1 by 12. 3 by 36. है ना? Three chances are there of getting 4. There are 3 chances. 1, 3, 2, 2, 3, 1. 3 chances. So that's why it is 3 by 36. What is the probability of getting 6? 5 by 36. So in this way I can write it is 1 by 36, 3 by 36, 5 by 36, 3 by 30. How much? Again 5 by 36. You repeat. Then 3 by 36. Then 1 by 36. So this table is a probability distribution table. Now this table is the probability distribution of this event. समझ में आ गई बात? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बड़े आराम से बना सकते हो, डाटा को एनालाइज कर सकते हो, है ना. एक समझ आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, अलग अलग दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं. ऐसा नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी को मिक्स मत करो. राइट. तो देखिए प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या है इस इवेंट का? प्रोबेबिलिटी का आंसर तो 1 by 2 है, अभी हमने कैलकुलेट किया था. लेकिन जब कभी आपसे कोई इंटरव्यूज में या कहीं भी आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट कहीं भी बैठेंगे, बहुत सारे इंटरव्यूज देंगे जब आप जीएलए में रहेंगे, तो आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो आप ये बताइए, जो भी रैंडम वेरिएबल के जो भी फेवरेबल वैल्यूज हैं, उन फेवरेबल वैल्यूज के लिए जो प्रोबेबिलिटी है उस सबको हम किसी टेबल में लिस्ट कर दें. Then that table is a probability distribution table. So I think it is clear. Probability distribution. अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे खुद एक probability distribution बनवाने वाला हूँ. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कि probability distribution table में. अभी हमने इवेंट बी का probability distribution बना दिया. अब हमें ले रहे हैं इवेंट सी. क्या ले रहे हैं हम? एक इवेंट सी. चलिए जरा सर में से. So now there is a third event C. This event representing that
sum of dices, sum of the top number of two dices. ठीक है, sum of the top numbers of the two dices, value of the sum of the top number of two dices. This is the event. Can you make the probability distribution table? 8 लोग हैं, आप कितने लोग बना सकते हैं? कॉन्फिडेंस बताइए. Can you make the probability distribution table for this event? Yes, no. आंसर बोलिए. यस सर. Yes. तो प्लीज मेक. 2 मिनट का समय है ना, बना दीजिए. और बस इस टेबल को बनाने के बाद अभी हम इस क्लास को एंड कर देंगे. Then we will again join at 12 o'clock. Second for the second session. So just इसका आंसर बताइए. जिसका भी आंसर आएगा then I will close the class. पेन और कॉपी लेके बैठे हुए हैं ना अपने पास, है ना? अलर्ट रहना है क्लास में. पेन, कॉपी, कैलकुलेटर, सिमुलेशन मॉडलिंग की क्लास में साथ में रखिए, है ना? मेक द टेबल, देन जस्ट टेल मी द वैल्यूज, आई विल राइट ऑन द बोर्ड. 2 minutes for you. अंकुर चौहान सुन पा रहे हैं? यस सर. हाँ, आप बनाइए. आप जल्दी बना सकते हैं बिकॉज यू आर हैविंग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एंड यू आर आल्सो वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यस सर. सर बिकॉज आई एम वेरी भूल गए थोड़ा सा. हाँ सर, भूल गया थोड़ा सा. काफी टाइम की बात हुई. आप लोग ऐसा करिएगा, एक बुक है बीएस ग्रेवाल, नाम सुना होगा आपने? यस सर. बीएस ग्रेवाल, ये बुक है हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. तो इस बुक में मतलब चैप्टर है ये सब चीजें वहाँ बहुत अच्छे से दी हुई हैं. प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल. तो थोड़ा सा इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, है ना? ठीक है सर. बीएस ग्रेवाल हायर इंजीनियरिंग. हाँ, अब जिसका आंसर आ गया है वो मुझे बताएं. हाँ बोलिए सर. बोलूं? हाँ, मैं टेबल बना देता हूँ. तो टेबल में फर्स्ट कॉलम में आपने क्या लिया है? सर सम एक्स. फर्स्ट कॉलम तो कैपिटल एक्स लिया होगा ना? यस सर. एक्स का मतलब क्या है? सम. सम. ठीक है. और सर दूसरे वैल्यू बोलिए. सर 2. दूसरे में क्या किया है? प्रोबेबिलिटी ली होगी. ठीक है. हाँ, आगे बोलिए. सर 2 से 12 तक नंबर लिखे हैं सम में. 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12. यस सर. क्योंकि ये सारे चीजें पॉसिबल हैं ना? यस सर. 2 से लेके 12 तक आ सकता है. ओके, उसके बाद प्रोबेबिलिटी बताइए. सर 2 की है 1/36. बोलते जाइए. सर 2/36. बोलते जाइए. ओके. 3/36. ओके. 4/36. शाबाश. नेक्स्ट. 5/36. नेक्स्ट. 6/36. नेक्स्ट. 5/36. नेक्स्ट. 4/36. नेक्स्ट. 3 2 1. नेक्स्ट. ये इन सभी का आप टोटल करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है? सिग्मा. इन सब का टोटल करेंगे देन यू विल गेट 1. आना चाहिए, है ना? टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए. 1 आ रहा है ना? यस सर. इस पूरे को टोटल करके देखिए 1 आना चाहिए. और जो लास्ट में अभी आपने जो टेबल बनाई थी उसका भी टोटल चेक कर लीजिए कि वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो उसमें क्या था? 1 था, 1 के बाद 3 था, 3 के बाद कितना था? सर 5 5. हाँ 5 5 कुछ ऐसे था ना. तो अभी आप ये इसको पूरे को यदि आप टोटल करेंगे तो क्या ये 1 आ रहा है? सर हाँ, इसका 1 आ रहा है. सेकंड वाले चेक करिएगा. सर हाँ, इसका 1 आ रहा है ना. तो जिसमें 1 आ रहा है और इसमें 1 नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इसके अलावा भी कुछ आउटकम्स बचे हुए हैं. yes, ना? इसमें तो हमने वो आउटकम्स लिए हैं, हमने कंडीशनल आउटकम्स लिए हैं कि वो इवन नंबर हो, है ना? और यहाँ हमने टोटल आउटकम्स ले लिए हैं, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो. हमने तो सारा आउटपुट ले लिया है. भाई नंबर क्या होगी? या तो ऑड होगी या इवन होगी.
तो हमने आउट भी ले लिया, A1 भी ले लिया, तो यहाँ पर हमको आंसर 1 मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आंसर 1 नहीं है। ठीक है। तो इस वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1, और जो इससे पहले वाली जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2. 1/2, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव लर्न समथिंग, और नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास। कोई क्वेरी हो आपकी तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, 2 मिनट, मैं जरा स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। कोई आज की क्लास में कोई क्वेरी है? अच्छा, आज पार्टिसिपेंट 1 कम है। थैंक यू सर। और कोई क्वेरी? चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं 12 बजे फिर हैं।